Welcome friends. Today we will discuss some of the NCERT questions of the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. So let's start. First question of NCERT. What were the social, economic and political conditions in Russia before 1905? The answer is social conditions. First, majority religion was Russian Orthodox Christianity. It also includes Catholics, Protestants, Muslim and Buddhist. Second, non-Russian nationality were not given freedom to follow their culture and language. Third, workers were divided in a group based upon their skill and training. Fourth, peasants formed their own group known as commune or a mir. That is, अब social conditions कैसी थी रशिया की in before 1905. मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ रशिया किस में बिलीव करते थे? जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते थे, इसलिए इनको कहा गया है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. इसके अलावा और कौन कौन से लोग रहते थे वहां पर? कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट. सेकेंड पॉइंट, नॉन रशियन नेशनैलिटी वर नॉट गिवन फ्रीडम टू फॉलो देयर कल्चर एंड लैंग्वेज. The nationalities who are not Russians, they were not given freedom to follow their own culture and language. Third, workers जो थे वहाँ के वो डिवाइड हो गए थे ग्रुप्स में based upon their skill and training. And last, as in case of worker, peasants also form their own group, which are known as commune, or you can also another name of peasants group is a mir, commune or a mir. चलो अब आते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस पर. फर्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ रशियंस वर एग्रीकल्चरिस्ट. सेकेंड, grain main item for export. Third, prominent industrial areas St. Petersburg and Moscow. Fourth, expansion of Russian rail network, foreign investment grew. Fifth, there were huge coal, iron and steel production. तो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे थी? पहले की मेजॉरिटी जो थी पॉपुलेशन रशिया की, दैट इज अराउंड 85%, दे वर एंगेज इन दी एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से जो ग्रेन था, ग्रेन मतलब गेहूं, वो वॉज अ मेजर आइटम फॉर एक्सपोर्ट. थर्ड पॉइंट था प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया का सेटअप थे इन दिस सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा था मॉस्को में. फोर्थ पॉइंट, विद द एक्सपेंशन ऑफ रेल नेटवर्क द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रशिया हैज गॉन अप. एंड लास्ट पॉइंट, देयर वाज अ ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ आयरन, कोल एंड स्टील. अब आते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर. Russia was a monarchy. Second, Tsar Nicholas II was the ruler of Russia and its empire. Third, he believed in the divine rights of king. Fourth, not responsible to parliament. Fifth, all political parties were illegal in Russia. तो political conditions कैसी थी? फर्स्ट, रशिया जो थी उस समय मोनार्की थी. आपको पता होगा मोनार्की क्या होती है. मोनार्की एक ऐसी सिस्टम होती है जहाँ पे गवर्नमेंट रन की जाती है बाय अ किंग और अ क्वीन. तो सिमिलरली तार निकोलस सेकंड थे रूलर रशिया के उस टाइम पे. थर्ड, वो तार निकोलस सेकंड बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग. फोर्थ, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट. एंड लास्ट, all political parties in Russia at that time were considered illegal. So this is the answer of the social, economic and political conditions in Russia before 1905. So next we came our question number 2, which is describe the history of socialist movement in Russia. इसको दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशलिज्म इन रशिया. तो चलो देखते हैं इसका आंसर. फर्स्ट, In 1898, Russian Social Democratic Worker Party
was formed on the lines of Karl Marx. Second, in 1900, some socialists formed Socialist Revolutionary Party, who struggled for peasants' right and demanded that land belonging to nobles be given to peasants. Third, Lenin, who formed Bolshevik group, felt that party should be disciplined and control its number and quality, whereas Menshevik thought that the party should be open for all. And last, Bolshevik were led by Lenin and Menshevik were led by Kerensky. ये तो हमने एक बार रीड कर लिया. अब मैं बताता हूँ ये इसका आंसर कैसे हमें करना है. इसका मतलब क्या है. जो सोशलिज्म इन रशिया के बारे में डिस्कस किया गया है, 1898 में एक पार्टी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जो बनी थी इन द लाइन्स ऑफ कार्ल मार्क्स. सेकेंड था बाय 1900 एक और पार्टी आई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी. उनका मेन एम क्या था? टू स्ट्रगल फॉर द पीजेंट राइट and to give the land belonging to nobles to the peasants. जो कोई भी लैंड नोबल्स को के पास थी, उनको वो पीजेंट्स को देना चाहते थे. ये मेन पर्पस था सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी का. थर्ड थे लेनिन एक वो थे जो लीडर थे बोल्शेविक ग्रुप के, और वो बिलीव करते थे कि अ पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड द पार्टी शुड कंट्रोल इट्स मेंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर एज वेल एज क्वालिटी. बट ऑन द अदर हैंड मेंशेविक एक दूसरी पार्टी बनी जो बिलीव करते थे दैट पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल. और लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोल्शेविक के लीडर का नाम था लेनिन और मेंशेविक के लीडर का नाम था केरेंस्की. तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में, राइट हिस्ट्री अबाउट द सोशलिस्ट मूवमेंट इन रशिया, या ये घुमा के दे दे राइट शोड नॉट ऑन सोशलिज्म इन रशिया, आपको ये चारों पॉइंट लिखने हैं. ठीक है, 3 to 4 मार्क्स से ही पूछा जाएगा. तो इसके साथ मैंने दोनों क्वेश्चंस कवर कर लिए. In next video, I will take a topic named 1905 Revolution and the incident of Bloody Sunday. So till then, bye. Thank you.